Hello students, and welcome to today's biology class. So in the previous class we had discussed about two different phylums of animal kingdom, that is Platyhelminthes and Aschelminthes. They were the worm varieties, mostly endoparasitic, and we have seen into the properties of these organisms. Now today we'll move on to the next two phylums of animal kingdom, that is phylum Annelida and phylum Arthropoda. So let's begin students. Phylum Annelida. Now this phylum Annelida has a very unique property. इनका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते ये बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं, and that property is metamerically segmented body. They do possess a metamerically segmented body, which means their whole body is divided into ring-like structures. तो ये जो Annelida phylum का नाम आया ये इसी से आया है, annulus. Annulus means ring-like structure. So the whole body is divided into small segments or ring-like structures called metamers. Each of the unit is called as metamer, and this kind of segmentation of body is called as metameric segmentation. Now these rings, these ring-like structures which are dividing the body, वो एक्सटर्नली भी डिवाइड करते हैं और इंटरनली भी डिवाइड करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के बॉडी सरफेस में उनका डिवीजन है, बॉडी के अंदर के तरफ से भी ये डिवाइडेड होते हैं. ठीक है. सो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. They are metamerically segmented organisms. Okay. Now this is how they look like, as you can see in the picture. आप लोग देख सकते हैं. This is a common example of Annelida. This is earthworm. So whole body is divided into small segments like this. So ये जो छोटे छोटे segment होते हैं, each of the segment is called as one metamer, and the total body segmentation is called as metameric segmentation. Okay. Now the next property is they can be aquatic, marine, terrestrial, free living, and sometimes can act as parasites. तो ये लोग aquatic हो सकते हैं, fresh water में रह सकते हैं, marine भी हो सकते हैं. They can also live in saline water. Terrestrial can live on land. Free living, they are not dependent on any other organism. They will be independent. तो वो लोग free living organisms हो सकते हैं. Sometimes they can act as parasites. In very few cases we have seen they can act as parasites. Their body is bilaterally symmetrical. तो ये पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो I'll just go through the points directly. I'll not discuss much about it. Bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate animals with organ system level organization. Now see students, ये जो properties अभी हमने mention किया है, bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate animals with organ system level organization, इसके बाद जितने भी फाइलम होंगे उनमें सब ये कॉमन होगा, क्योंकि जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं सबका यही कॉन्फ़िगरेशन होता है. बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, 3 जर्म लेयर्स होगा उसका, सीलोमेट मतलब एक ट्रू बॉडी कैविटी होगा उन लोगों का, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा. So these properties will be same from this phylum onwards. The body is covered by cuticle, which is secreted by the ectoderm. अब ये क्यूटिकल जो होता है वो एक वेरी थिन कवरिंग होता है ओवर द बॉडी, और ये क्यूटिकल उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. इट इज प्रेजेंट जस्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? सिंपली इफ यू कैन सी कि एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइटिक इन नेचर, तो वो लोग किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहेंगे. So different type of digestive enzymes, different type of lytic enzymes, different type of acids are secreted in the digestive tracts where these organisms generally carry out their infection. तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप कर लेते हैं जिसको बोला जाता है क्यूटिकल. ओके. They possess longitudinal and circular muscles that help in locomotion. तो इनका तो hands and legs नहीं होता like higher organisms, but yes, they do possess muscles, longitudinal and circular muscles. ये दोनों muscles contract और expand करके उनको locomote कर सकते हैं. Now if you might have observed an earthworm moving, you can understand this point. जब earthworm move करता है तो अपना पूरा body contract कर लेता है, फिर expand करता है, आगे बढ़ जाता है, फिर contract कर लेता है, फिर expand करता है, आगे बढ़ जाता है. So that is how the locomotion is carried out by the help of these muscles, which is the longitudinal muscles and the circular muscles. Setae are small, you can say, hairy extensions towards the outer surface of the body. They are the locomotory organelles. तो along with the muscles, ये जो setae होते हैं ये भी help करते हैं locomotion में. They are lateral appendages, means they are small outgrowths on the lateral side of the body.
कॉल्ड पारापोडिया। तो पारापोडिया भी होता है, सीटें तो होते ही हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स, along with them lateral appendages called parapodia are also present which help in swimming and respiration. ना ये जो पारापोडिया होता है जनरली आप इसको एक्वेटिक एनिलीड्स में देखोगे तो वो हेल्प करता है फॉर स्विमिंग एंड रेस्पिरेशन। अब ये पारापोडिया वर्ड दो वर्ड से बना है, पारा मीन्स टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, पॉड मीन्स लेग, सो लेग्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर सरफेस सिंपली बोला जाए तो, ठीक है। Excretion and osmoregulation generally occurs through nephridia. Now, nephridia are primitive structures which are, you can say, ancestors of the modern nephrons. एक टाइप का उनको एंसेस्टर बोल सकते हो, क्योंकि हमारा जो किडनी होता है एक्सक्रीटोरी ऑर्गन, उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नाउ दे आर जनरली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। नाउ ये नेफ्रिडिया जो है ये भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, थोड़ा प्रिमिटिव है, नॉट कंप्लीटली वेल डेवलप्ड किडनी टाइप ऑर्गन, बट ये नेफ्रिडिया भी वही काम करता है, इट हेल्प्स इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन द ओस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी में वाटर और आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज ओस्मोरेगुलेशन, तो वो भी कैरी आउट करता है नेफ्रिडिया, ठीक है। दे पोजेस ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स कि उनका कोई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। The blood will flow from closed blood vessels. It does not flow directly from the body cavity. So the circulatory system is closed type. Nervous system includes pair of ganglia and double ventral nerve cord. तो इनका एक pair of ganglia होता है. Now this ganglia is a bunch of nerve fibers. तो ये तो complete brain नहीं होता, but yes, a bunch of nerve fibers which forms their brain-like structure. और एक double ventral nerve cord होता है. Double ventral nerve cord means हमारा एक ही सिंगल स्पाइनल कॉर्ड होता है, लेकिन इनके वेंट्रल सरफेस में दो पैरेलली रनिंग नर्व कॉर्ड्स होते हैं। टू पैरेलली रनिंग नर्व कॉर्ड्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो ये होता है उनका नर्वस सिस्टम। तो हमारे में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इनमें पेयर्ड गैंग्लिया एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। सेक्सेस आर सेपरेट एक्सेप्ट इन केस ऑफ लीच एंड अर्थवर्म व्हिच कैन एक्ट एज हर्माफ्रोडाइट्स। तो हर्माफ्रोडाइट्स तो हमने ये पहले भी देखा है कि here the sexes are not separate, they are not distinct, and they might be able to interchange their sex from male to female or female to male. So that kind of property is seen here. Example, Nereis ferritima. Ferritima आपका earthworm होता है, and Hirudinaria, which is the leech. This is Nereis, this is earthworm, and the third picture on your screen is leech. ठीक है। तो नेरिस आप देख सकते हो एक्वेटिक होता है, तो इसका जो ये जो बाहर का एक्सटेंशन है, दीज आर पारापोडिया। हमने जो पारापोडिया मेंशन किया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर्स आर पारापोडिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फाइलम एनिलिडा। द नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। Now Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom with more than 5 lakh species. In fact, it contains almost 2/3 of all the species present on planet Earth, ठीक है। तो जितने भी स्पीसीज अभी तक हमने डिस्कवर किया है उसका 2/3 स्पीसीज सिर्फ इंसेक्ट्स या फिर आर्थ्रोपोड्स ही होते हैं। तो 5 lakh species, more than 5 lakh species are present in this phylum, and that is why it is called as the largest phylum of animal kingdom. The word arthro means joint and the word pod means legs. तो simply said jointed legs. तो ये जो वर्ड होता है आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। अब क्यों जॉइंटेड लेग्स बोला जाता है ये हम लोग आगे देखेंगे, विल सी इन द अपकमिंग पॉइंट्स। सो जनरली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनका लेग सब जॉइंटेड होता है। नाउ जॉइंटेड इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट आर वी सेइंग? वी आर सेइंग जॉइंटेड एट वन सिंगल पोजीशन। सारे लेग्स एक ही पोजीशन पे जॉइन होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है जॉइंटेड लेग्स, राइट। Their body is covered with a chitinous exoskeleton. तो you will find कि students skeleton दो टाइप के हो सकते हैं, endoskeleton present inside the body and exoskeleton which is generally present outside the body, ठीक है। तो इनका कोई endoskeleton नहीं होता, there is no skeletal system inside the body, but yes, body का बाहर एक skeleton का covering होता है जिसको exoskeleton बोला जाता है। Now that exoskeleton is made up of chitin. It's a very hard substance which you have seen. ये काइटिन हमने फंगस में भी देखा था, फंगस के सेल वॉल में होता है। तो सिमिलरली इनका जो बॉडी का आउटर कवरिंग होता है वो काइटिन से बना होता है, बहुत हार्ड होता है। नाउ इमेजिन ए क्रैब, आप लोग देखे होंगे केकड़ा, उसका जो आउटर कवरिंग होता है बहुत हार्ड होता है, दैट इज एक्चुअली द एक्सोस्केलेटन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म।
The body is divided into head, thorax and abdomen with legs attached at the thorax. Now this is the point I was mentioning in the previous one कि इनका बॉडी तीन पार्ट में ही डिवाइडेड होता है. जैसे हमने एनिलिडा में देखा कि टोटल बॉडी डिवाइड होता है, वैसा नहीं होता इनमें. इनका सिर्फ तीन ही डिवीजन होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. और सारे लेग्स अटैच्ड होते हैं इन द थोरैक्स, एट द थोरैक्स. सो दैट इज द रीजन इनका नाम पड़ गया आर्थ्रोपोडा. नाउ यू कैन लुक एट दिस डायग्राम. तो ये देखो, इनका हेड होता है दिस ग्रीन कलर पार्ट विच इज सोन हियर, और थोरैक्स होता है मिडिल पार्ट, चेस्ट पार्ट आप लोग बोल सकते हो, और लास्ट में देखिए रेड कलर का एब्डोमेन है. मतलब बॉडी तीन ही पार्ट्स में डिवाइडेड है. नाउ हियर इफ यू ऑब्जर्व, ऑल द लेग्स आर जॉइंट एट द थोरैक्स ओनली. यहाँ पे एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है. दे आर नॉट जॉइंट एट द एब्डोमेन, दे आर नॉट जॉइंट एट द हेड सेगमेंट. सो दैट इज द रीजन इनका नाम पड़ गया आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स. ठीक है. Their legs are joint at only the thoracic segment, not in any other part of the body. Respiration occurs through gills, book lungs, trachea, etc. So ये सारे उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में. गिल्स होता है, दिस आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, फिशेस में भी दिखाई देता है. अब बुक गिल्स और बुक लंग्स जो होते हैं, इनको इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि ये थोड़े फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे आपका बुक, उसके अंदर पेजेस रहते हैं फोल्ड फोल्ड करके, वैसे ही फोल्डेड लेयर्स की तरह इनका लंग्स होता है, गिल्स होता है. तो इसीलिए उसको बोला था बुक गिल्स या फिर बुक लंग्स. ओके, दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये आपका एक स्पाइडर का लंग्स दिखाया गया है यहाँ पे. तो इसका लंग्स देखिए, जैसे बुक के पेजेस होते हैं एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए, इसके भी वैसे लेयर्स होते हैं. लेमिला बोला जाता है इन लेयर्स को, लेमिला ऑफ द लंग्स. तो ये फोल्डेड होते हैं लाइक ए बुक, दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज बुक लंग्स. एंड ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप. तो ये लोग विंड पाइप से भी डायरेक्टली रेस्पिरेशन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. The sensory organs like antenna, compound eyes, statocyst, which is actually a balancing organ, are present. इनमें sensory organs होते हैं. They have an antenna. एंटीना एक टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, वो केमिकल रिसीव करता है एनवायरनमेंट से और उसको एनालाइज करता है. एंड कंपाउंड आइज, एज यू नो कि ये जो आइज होता है इन केस ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, वो कंपाउंड होता है, मेड अप ऑफ मेनी लेंसेस, एंड दे हैव ए थ्री डायमेंशनल विजन. हम लोगों का जो विजन होता है टू डायमेंशनल विजन होता है. रिमेंबर, ह्यूमन विजन इज टू डायमेंशनल, whereas the insect vision is three dimensional. They have a compound eye. एंड स्टेटोसिस्ट, ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, उनके बॉडी को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है. बिकॉज यूल फाइंड कि मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर इंसेक्ट्स व्हिच फ्लाई, और सम ऑफ देम लिव इन द वाटर. तो वो थ्री डायमेंशनल एरियाज में रहते हैं जहाँ पे वो लोग, उनका बॉडी पोस्चर मेंटेन करना जरूरी रहता है. उसके लिए उनमें होता है एक स्टेटोसिस्ट. The next point, excretion occurs through Malpighian tubule and green glands. Now ये green glands सिर्फ prawn varieties में दिखाई देता है, very specific. You might have seen, अगर आप लोग prawn खाते हैं तो prawn का जो head segment होता है, वहां पे छोटा deep green color के दो glands होते हैं, छोटे छोटे, in the head segment mainly. That is being removed while you are cooking the prawns. So that is their excretory organ. ठीक है. तो green glands excretory organ in case of prawn varieties, whereas others have Malpighian tubule. Now Malpighian tubule is a long tube-like structure which carries out excretion. It generally excrete uric acid. ठीक है. हमारा जो excretory product होता है वो होता है urine which contains urea. लेकिन इनमें uric acid excrete होता है by the help of these structures called as Malpighian tubules. Okay. So ये थोड़ा you can say it is a kind of primitive kind of kidney-like structure having tubules, which is Malpighian tubule. Human के केस में भी होता है, इसका थोड़ा advanced form होता है, उसको हम लोग Malpighian corpuscle बोलते हैं. So that we'll discuss in the human physiology chapter. Okay, for the time being, remember Malpighian tubules function as excretory organs in case of arthropods. Their fertilization is internal, and direct or indirect development can occur, generally oviparous. ठीक है. तो इनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यू कैन सी इन केस ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई के लाइफ में आप लोग देखोगे पहले एक एग की तरह वो अपना लाइफ स्टार्ट करता है, देन इट विल डेवलप इनटू ए लार्वा, देन इनटू ए कैटरपिलर, देन इनटू ए प्यूपा, एंड फाइनली इनटू ए बटरफ्लाई. तो इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब थ्रू आउट द डेवलपमेंट बहुत सारे छोटे छोटे लार्वल स्टेजेस रहते हैं. या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है. यू विल फाइंड कि दे कैन डायरेक्टली डेवलप. दे आर जनरली ओविपेरस, दैट मींस दे ले एग्स. तो मेजरली वो लोग ओविपेरस ही होते हैं. कॉमन एग्जांपल्स, आई विल लीव दिस टू यू.
ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। आई एम गिविंग यू 5 6, ओके। So these are the 6 different kinds of organisms which belong to this group, and you can identify them, I suppose. They are honeybee, butterfly, crab, scorpions, prawns, and spiders. So all of them belong to this category. In fact, all the insects belong to this category. That is the reason Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom. So these are the two different phylums of animal kingdom, Annelida and Arthropoda. In the next class, we'll move on to the next phylums, Mollusca and Echinodermata. Thank you. Thank you, everyone.